Good evening. We have gathered here to brief you about an incident that occurred on 7th of January 2025 in Hamre, Patan. At approximately 20:30 hours, that is 8:30 p.m., information was received through in-charge police post Palhalu regarding an incident at 1940 hours, that is 7:40 p.m., where unknown terrorists, with the intent to cause harm and destruction, lobbed a grenade towards the 163 TA premises, which is a security force camp. The grenade exploded on top of the MI room structure, causing significant damage. Upon receiving this information, FIR number 1 of 2025 was registered in Police Station Patan under Section 109 Bharatiya Nyaya Sanhita and Section 16 and 23 of the Unlawful Activities Prevention Act. And an investigation was promptly initiated. Necessary legal procedures, including evidence collection at the scene of crime, were carried out meticulously. Through an in-depth analysis of electronic and technical evidence, coupled with human intelligence and relentless efforts by multiple investigative teams, the perpetrators were apprehended within 24 hours of the incident. 3 individuals involved in the crime were arrested, and on their instance, 1 hand grenade, 1 AK series rifle, 1 pistol, 256 live AK rounds, and 21 live pistol rounds were recovered. While revealing the detailed information about the arrested individuals and their modus operandi could compromise the ongoing investigations, it is essential to note that one of the arrested individuals is a surrendered, released terrorist. The other is a son of another released, surrendered terrorist. The third individual, who is prima facie the mastermind, had been evading arrest in a narco-terror case for the past 2 years. The disturbing involvement of surrendered and released terrorists and their close family members in such activities poses challenge to our efforts aimed at reintegrating the community into the mainstream. Therefore, Baramulla Police strongly cautions the surrendered released terrorists against engaging in terror and anti-national activities. Such actions contradict their requests for leniency in surveillance and undermine the trust-building measures. The Baramulla Police and the security forces assure the peace-loving citizens of its unwavering commitment to maintain peace and security in the district. We express our gratitude to the District Police Sopore, District Police Bandipur, the 52 Rashtriya Rifles, and the other security forces for their cooperation and timely assistance. Special thanks are also extended to the citizens who supported the police in the investigations. Thank you. उर्दू में जी हम सब यहाँ पर मौजूद हैं आज आपको ब्रीफ करने के लिए एक इंसिडेंट के बारे में जो कि 7 जनवरी 2025 को हामरे पटन में वाक़ा हुआ। तकरीबन 8:30 बजे एक इत्तला मौसूल होती है इंचार्ज पुलिस पोस्ट पलहालन के जरिए कि तकरीबन 7:40 शाम को अननोन टेररिस्ट ने नुकसान जानी व माली पहुंचाने के लिए एक ग्रेनेड हमला किया 163 टीए की प्रेमिसेस पर, जो कि एक सिक्योरिटी फोर्स कैंप। ग्रेनेड एक्सप्लोड हुआ एमआई रूम स्ट्रक्चर पर, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान उस स्ट्रक्चर को हुआ। ये इंफॉर्मेशन मौसूल होने पर एफआईआर नंबर 1/2025 जो कि पुलिस स्टेशन पटन में दर्ज हुआ अंडर सेक्शन 109 BNS और सेक्शन 16 और 23 अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में, और इसकी इन्वेस्टिगेशन शदोमत से शुरू हुई। लीगल प्रोसीजर्स जो मौके पर शुरू किए गए और जो सीन ऑफ क्राइम पर सबूत फराहम हुए, उनको बड़ी बारीकी के साथ परखा गया। एक एनालिसिस जो कि इलेक्ट्रॉनिक और टेक्निकल एविडेंस की गई और ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेसिस पर जो मल्टीपल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बनी थी, उनकी काफ़ी काविशों के बाद ये केस 24 घंटे के अंदर अंदर सॉल्व कर लिया गया परपेट्रेटर्स को अरेस्ट करने के बाद। 3 इंडिविजुअल्स अरेस्ट हुए जिनकी डिटेल्स हम आपके साथ इस वक्त शेयर नहीं कर पाएंगे दीदा दानिश्ता तौर, क्योंकि मजीद गिरफ्तारियां और रिकवरीज मुतवक्का हैं। इन टेररिस्ट की निशानदेही और इनकी इंस्टेंस पर एक हैंड ग्रेनेड, एक AK सीरीज राइफल, एक पिस्टल, 256 लाइव AK राउंड्स, 21 लाइव पिस्टल राउंड्स बरामद हुए।
एक नोट करने लायक जो हमें कुछ चीज़ें मिली, उनमें एक ये बात है कि एक शख्स इनमें से जो अरेस्ट हुआ है वो एक रिलीज सरेंडर टेररिस्ट, दूसरा शख्स जो गिरफ्तार हुआ है वो एक सरेंडर रिलीज टेररिस्ट का बेटा है, और तीसरा शख्स जो कि इसका मास्टरमाइंड लगता है वो इवेड कर रहा था अपनी अरेस्ट पिछले 2 साल से एक नार्को टेरर केस में, और अपना डिस्ट्रिक्ट छोड़ करके कहीं और रह रहा था। ये जो डिस्टर्बिंग इन्वॉल्वमेंट सरेंडर रिलीज टेररिस्ट की है और इनके फैमिली मेंबर्स की है, ये हमारे लिए एक तशवीशनाक इन्वेस्टिगेशन का आउटकम है। इससे हमारी जो एफर्ट्स हैं रिलीज सरेंडर टेररिस्ट को मेन स्ट्रीम में रीइंटीग्रेट करने के, उनमें एक डेंट पड़ता है। बारामूला पुलिस रिक्वेस्ट भी करता है और चेतावनी भी देता है उन सरेंडर रिलीज टेररिस्ट को कि वो किसी भी मुल्क दुश्मन एक्टिविटी में या टेरर एक्टिविटी में एंगेज ना हो और अपनी फैमिलीज को भी एंगेज ना होने दें। ऐसी हरकत व सकनात उनकी जो दरख्वास्त रहती है कि उनको लीनियंसी दिखाई जाए सर्वेलेंस में, और जो हमारी कोशिशें रहती हैं ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स जो हमारे रहते हैं उनके साथ पेश आने में, उस पर भी असर डालती हैं। बारामूला पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो अमन पसंद अवाम है उनको यकीन दहानी करना चाहती है कि डिस्ट्रिक्ट में अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश में पेश रहेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस सोपोर, डिस्ट्रिक्ट पुलिस बांडीपुर, 52 राष्ट्रीय राइफल्स और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं उनकी टाइमली असिस्टेंस के लिए और कोऑपरेशन के लिए, जिनके बिना ये कामयाबी शायद पॉसिबल नहीं होती। हम सिविलियंस का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन सिविलियंस ने हमारी इस केस को सॉल्व करने में और इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने में मदद की। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।